Hello everyone, Namaskar. We come to the next topic, inverse of a function. So as we already have discussed it earlier that a function is invertible if and only if it is bijective, right? And if f is a function from a to b, then its inverse is, it's a function from a to b which is bijective, then its inverse is denoted by f inverse and is a function from b to a, right? Or you denote it by g, and the composition f composition g will be the identity function from a to a, and g composition of f will be the identity function from b to b. This is something we have already studied in our previous topic, so in our previous lectures. Now, how to find the inverse of a function or why it has to be bijective? I'll just explain it to you with the help of the arrow diagrams. अब हमने पढ़े थे there are four types of functions what we studied earlier. One is the 1-1. I'm taking some dots to represent the arrow relationship. Like this is one function. Let me say this is a function f from a to b. There's another function g from c to d, let me say. If we take some h function, let me take some sets p to q, and this is defined like right. And let me have one more function. Let me say this is function t from a set x to set y, and this is defined as so what I have considered here, this is the case that is 1-1 and onto, that is it is bijective. This function is many going to 1, many 1, but into this one is 1-1 and into, because this element do not have any pre-image, and this one is many 1 and onto. दो ही ऑप्शंस थे ना हमारे पास. क्या था, एक तरफ 1-1, यहाँ तो 1-1 हो सकता था या many 1 हो सकता था, और इधर क्या हो सकता था, onto हो सकता था या into हो सकता था. तो ऑप्शन बनाओ, इट कुड बी 1-1 onto, 1-1 into, many 1 onto, many 1 into. तो चार ही टाइप्स बनेंगे उस हिसाब से. चारों को मैंने एक एक एरो डायग्राम बना लिया. अब इनवर्स हैज टू बी अ फंक्शन ना. इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज आल्सो अ फंक्शन. और फंक्शन का क्राइटेरिया पता है हम सब लोगों को कि जो डोमेन बनेगा उसके हर एक एलिमेंट का इमेज होगा और यूनिक होगा. यहाँ पे अगर मैं इनको इंटरचेंज कर देता हूँ, अब मैं रिवर्स वे में बता रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट एफ इनवर्स, right? F inverse will be a function from B to A. So this element as per F inverse will have 1, this will have 1, this will have 1 image, and each of the element here will have some image, and that image will be unique, right? If we talk about this, if I take G inverse, so G inverse will be a function from D to C. Now this element do not have an image under the function G inverse, क्योंकि अब G inverse का डोमेन D बन गया. डोमेन के हर एक एंट्री का इमेज होना चाहिए ना, इसका तो इमेज ही नहीं है, इसीलिए G inverse फंक्शन ही नहीं हुआ. तो ये वाला क्राइटेरिया स्ट्राइक ऑफ हो गया. अब आ जाते हैं हम H पे. सेम फंडा, अगर ये H इनवर्स है, H इनवर्स कहाँ से आएगा, Q से लेकर P तक. अगेन दिस एलिमेंट डू नॉट हैव इमेज अंडर H इनवर्स, राइट बॉस. तो इसका मतलब ये भी फंक्शन नहीं हुआ. एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस, यहाँ पे जब आप T इनवर्स लोगे फंक्शन, राइट, हर एक एलिमेंट का इमेज तो है, बट दिस एलिमेंट हैव गॉट हाउ मेनी इमेजेस अंडर दिस मैप, इट हैज गॉट 2 images. इमेज यूनिक होनी चाहिए, which again contradicts the definition of function. इसीलिए for a function to be invertible,
the function has to be a bijective, that is it has to be 1 1 as well as onto, right? अब हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड द इनवर्स। इनवर्स के लिए आपको एक ही चीज सजेस्ट की जाती है, जब भी आपने इनवर्स फाइंड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू प्रूव दैट द गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव। आई विल स्टार्ट विद वन ऑफ द सिंपल एग्जांपल्स। f is a function from real to real defined as f of x is equal to 4x plus 3. I have taken a linear function. linear function हमेशा इन्वर्टिबल होता है। अच्छा, एक चीज मैं ग्राफिकली भी आपको बता देता हूँ। ग्राफिकली अगर आपको कभी भी किसी चीज का इनवर्स देखना हो, और यहाँ पे वो किसी चीज जो मैंने बोली वो क्या है हमारे पास बेटा, फंक्शन, तो वो हो जाता है image under f of x equal to x, that is identity function। मेरा कहने का भावार्थ ये है कि ये हमारे पास आ गया आइडेंटिटी फंक्शन, राइट। अगर आपके पास कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ यूं बनता है, तो इसकी इमेज अंडर दिस कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी ना, ये अगर f है तो ये उसका f इनवर्स होगा। दिस इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन, कि ग्राफिकली अगर आपने किसी चीज का इनवर्स देखना हो तो आपने क्या करना, उस फंक्शन का ग्राफ बनाना, फिर आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है f ऑफ x इक्वल टू x, वहां पे आप एक मिरर स्ट्रिप रख लो और उसमें देखो वो ग्राफ कैसा दिखता है। उस मिरर स्ट्रिप में जैसा वो ग्राफ दिखेगा वो उस फंक्शन के इनवर्स का ग्राफ होगा। एग्जाम में हालांकि हमारे यहाँ ये काम नहीं आएगा, यहाँ पर इसको मुझे इनवर्स फाइंड करना है कि फाइंड f इनवर्स, राइट। सो मैं क्या करूंगा, पहले इसको 1 1 प्रूव करूंगा, लिखूंगा मैं, इन ऑर्डर टू फाइंड f इनवर्स आई नीड टू शो दैट f इज बाइजेक्टिव, ठीक है। सो दैट इज 1 1 ऑन टू 1 1 कैसे प्रूव करते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू व्हाट, द डोमेन सेट ऑफ द फंक्शन सच दैट f of x1 is equal to what, f of x2, that implies 4x1 plus 3 is equal to 4x1, sorry 2 plus 3, this 3 and 3 set free, so 4x1 is equal to 4x2, 4 and 4 no more, this implies x1 is equal to x2 for all x1 x2 belonging to what, the domain set. It means that f is 1 1, right? Something we have already done in a previous class also to prove that the function is bijective. Now I have to prove that this function is onto as well, right? So in order to prove this function onto, what is the procedure? The procedure is onto. So let for y belonging to the codomain, ठीक है, there exists some x belonging to domain such that f of x is equal to y, this implies 4x plus 3 equal to y। याद आ रहा है onto कैसे प्रूव करते थे, solve for x in terms of y, this implies x is equal to what, 4x is equal to y minus 3, x is equal to y minus 3 upon 4. Now y belongs to what, reals, y minus 3 will also be what, real, y minus 3 upon 4 will also be what, real. It means that x belongs to domain of the function for all y belonging to the codomain, means the codomain of the function is equal to range of the function. This implies f is onto, right boss? जब हमारे पास फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाए, ठीक है, तभी वो इन्वर्टिबल होता है। अब हम इसके बाद क्या लिखेंगे, as f is bijective so f is invertible, ठीक है, that is f of x is equal to y implies x is equal to f inverse, थोड़ा सुंदर लिख देते हैं ना, implies x is equal to f inverse of y। आप हर एक का इन्वर्स उधर नहीं ले जा सकते, जैसे
कहीं भी आप देख रहे हो, सपोज सिंपल एग्जांपल देता हूँ, अगर आप साइन एक्स इक्वल टू थीटा ले रहे हो, आप बोलो मैं साइन को उधर ले जाऊँ तो ये साइन इनवर्स बन जाएगा, हर बार नहीं बनेगा। अगर वो क्या होगा, जिस जगह पर वो बाइजेक्टिव होगा उसी जगह पर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, उतने ही डोमेन के लिए वो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। प्लीज इस चीज को ध्यान रखिए। सो जब भी बाइजेक्टिव होगा फिर आप लिखोगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ वाई। सो कहने का मतलब हमारा ये हो गया कि जो ऑन टू में, ठीक है, तो इसका थोड़ी बात बाद में बताता हूँ, जो बताने लगा था आपको, which implies f inverse of y is equal to, अरे शाबाश, y यहीं पे बिठाया हमने, किसके बराबर आया था हमारे पास, x की वैल्यू आई थी यहाँ पे, x इक्वल्स टू व्हाट, 4x plus 3 इज इक्वल टू क्या लिया था हमने y, तो x इक्वल टू y minus 3 upon 4, अच्छा ये लिखा हुआ था। सो दिस वाज व्हाट, y minus 3 upon 4. So this is the value of function of f inverse y minus 3 upon 4. So कहने का भावार्थ ये हो गया बच्चों, that the value of x obtained in ontoness of a function is actually the definition of the inverse. So f inverse की जो डेफिनेशन बनेगी, that will be value of x obtained during ontoness when the function was onto, उसमें जो x का वैल्यू आएगा, ठीक है, that will be the definition of f inverse। आ गया। अब हमारी सिचुएशन ये है वेरीफाई करना जो हमने निकाला f inverse वो सही है या गलत है। So for that what we need to do is we need to find the composition of, so let's verify this, we'll verify only if it is asked. So f composition f inverse of x is equal to f inverse of f of x, f inverse of f of x क्या था, 4x plus 3। अब ये आ गया हमारे पास f इनवर्स की वैल्यू, दैट इज दिस इज इक्वल टू y। f इनवर्स में y की जगह पे ये वैल्यू डाल दो, क्या बन जाएगा हमारे पास, ये y की जगह आ गया -3 upon 4, this entire thing will come in place of y, so this will be 3 and 3 gone, 4x upon 4 equals to x is equal to identity function. And similarly you will find f inverse composition f of x, and which also happens to be equal to I, and hence this inverse is right। ठीक है। सो बाइजेक्टिव और इनवर्स पे कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, एग्जैक्टली सेम चीजें हैं, सिर्फ फर्क कहाँ पे जाके आएगा, इनका फर्क आएगा जब आप वेरीफाई करोगे उसको, ठीक है, तो उस केस में आपको इनवर्स वेरीफाई करने के लिए कंपोजिशन को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और जो ऑन टू में x की वैल्यू थी वो आपके पास f इनवर्स की डेफिनेशन थी। इतनी चीज ही ऐड होती है इनवर्स के लिए बाइजेक्टिव के आगे, बाकी सारा एज इट इज करना है आपको, ठीक है। सो इट इज रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ यू टू डू मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स, क्योंकि जब आप इनवर्स वाले क्वेश्चन करोगे बाइजेक्टिव वाले तरीके से तो आपका बाइजेक्टिव वाला टॉपिक बाय डिफॉल्ट रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। So let's have few more questions, like this was a question in board examination, r positive से लेके 4 to infinity defined as f of x equals to x square plus 4, right, and find f inverse, सीधा लिखा find f inverse if it exists। So for f inverse to exist it has to be bijective। r positive का मतलब क्या होता है, this is set of all non-negative reals। ये दे रखा होगा आपको क्वेश्चन में, अगर वो रियल के साथ कोई और साइन यूज करता है तो वो एक्सप्लेन कर देता है कि वो क्या चीज है, राइट। सो इसका डोमेन जो है दिस इज ऑल रियल्स माइनस नेगेटिव रियल्स, ठीक है ना, ऑल नॉन नेगेटिव रियल्स। इसको मैं शॉर्टकट में अगर उसमें लिखता हूँ, आई कैन राइट इट लाइक दिस 0 to infinity, है ना, इंटरवल्स में अगर लिखा जाता है तो ये मतलब है इसके डोमेन का। सॉल्यूशन, सो वी हैव टू शो दैट 1 1, तब डायरेक्टली आई विल बी टेकिंग द कोर पॉइंट्स ओनली, राइट। सो फॉर 1 1,
So what you do is let x1 x2 belongs to the domain of the set such that f of x1 equal to f of x2. That implies that x1 square plus 4 equal to x2 square plus 4. 4 and 4 find to seashore. So this implies x1 square equal to x2 whole square. This will give you x1 equal to plus minus x2. We have already discussed it earlier. ठीक है friends. So a square minus b square लगा के तो as minus x2 as x2 belongs to what domain of the function ना, it means that minus of x2 does not belong to domain. So minus part is rejected. So x1 is equal to x2 for all x1 x2 belonging to, it means it is 1 1. ठीक है. अब आप बोलोगे वो नेगेटिव वाली एग्जाम्पल लेके हमने पिछली बार इसको मैनी वन बोला था, लेकिन इस बार नेगेटिव है ही नहीं इसके डोमेन में. ठीक है. और कोई भी दो नंबर्स पॉजिटिव में आपको नहीं मिलेंगे जो डिस्टिंक्ट हो और उनके स्क्वायर से सेम हो. राइट सर. एंड देन यू हैव टू प्रूव दैट इज ऑन टू के लिए भी सेम फंडा. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई. यू नो वाई कहाँ से आएगा, वाई यहाँ से आएगा. वाई कम्स फ्रॉम हेयर, एक्स कम्स फ्रॉम हेयर. राइट. So this will be x square plus 4 equals to y. So x will be y minus 4 under root. Right? You write here x square equal to y minus 4. ठीक है जी. Now y किसके, अब आपको पता है रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ गया तो बात नहीं बनेगी. अब आपको ऑलरेडी पता है as y किसको बिलोंग करता है, 4 से लेके इन्फिनिटी तक. राइट. इसका मतलब y इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट 4. अगर मैं उसको नंबर लाइन पे भी प्लॉट कर दूं तो यहाँ से है ना 4 से इन्फिनिटी. राइट. तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मीन्स y माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड रूट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल्स. दिस इंप्लाइज द रूट ऑफ y माइनस 4 विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x इज व्हाट, x इज ऑब्वियसली सॉरी इट वाज 0 टू इन्फिनिटी. व्हाई डिड आई राइट 0 टू a. ठीक है. 0 टू इन्फिनिटी. तो x इज व्हाट, x इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, इसका ये मतलब हो गया हमारे पास कि x बिलोंग्स टू r पॉजिटिव फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू 4 टू इन्फिनिटी. ठीक है. इसका मतलब f इज ऑन टू. सो f ऑफ x इक्वल्स टू y है ना. फॉर इनवर्स के लिए f ऑफ x इज इक्वल टू y will give you that x square plus 4 equals to y. अच्छा मैं सॉल्व क्यों कर रहा हूँ वापस, तो इनवर्स के लिए पता तो था. दिस implies that x is equal to f inverse of y. तो दिस implies that f inverse of y is equal to under root of y minus 4. या क्या इनवर्स का डेफिनेशन. कंपोजिशन लगा के आप चेक करते रहेंगे इसको कि ये सही है या गलत. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है. इसको ध्यान रखिए 0 टू इन्फिनिटी था. एब्सेंस ऑफ माइंड कहीं ना कहीं वो a लिख दिया मैंने उसको. थैंक गॉड आई डिड नॉट राइट लेट a इक्वल्स टू इन्फिनिटी. है ना. चलिए बेटे अगला क्वेश्चन अगर हम करें, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग रहता है. ये क्वेश्चन है f इज अ फंक्शन फ्रॉम r पॉजिटिव टू -5 टू इन्फिनिटी. f of x is equal to 9x square plus 12x plus 5. ठीक है जी. और ये क्वेश्चन 9x प्लस 6x माइनस 5, दूसरा और दो मिक्स हो गए 6x माइनस 5. ये एक बड़ा डोमिनेटिंग क्वेश्चन है. और आप ये मान के चलिए कि इस साल आपके जितने भी एग्जाम्स होंगे स्कूल्स में, आप कहीं भी पढ़ते होंगे, एटलीस्ट यू कैन एक्सपेक्टेड वंस इन योर एग्जाम्स. ठीक है. So now he is asking us to find its f inverse. इस क्वेश्चन में तो ऑलरेडी दे रखा है कि इसका इनवर्स ये है, वेरीफाई करना है. तो सॉल्यूशन इफ आई टॉक अबाउट 1 1s, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r पॉजिटिव. r पॉजिटिव का मतलब पता है ना, वापस लिखता हूँ मैं 0 से लेके इन्फिनिटी. इन्फिनिटी इज ऑलवेज ओपन है ना. सच दैट f of x1 is equal to f of x2. So this will give you what, 9x1 square plus 6x1 minus 5, 9x2 square plus 6x2 minus 5, minus 5 कैंसिल. अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का बेसिक तरीका क्या होता है, वी ऑलवेज पुट लाइक टर्म्स टुगेदर. ठीक है. तो लेट्स पुट दीज थिंग्स टुगेदर, टेक इट टू लेफ्ट हैंड साइड. 9x1 स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर. ठीक है जी. प्लस इसमें से ये वाला
6 times x1 minus x2 equal to what? शून्य. फैक्टराइज इट, x1 माइनस x2 ओवरऑल कॉमन ले लिया, ठीक है, इन दोनों में से 3 भी कॉमन आ गया. व्हाट आर यू लेफ्ट विद? 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया? a प्लस बी प्लस इधर क्या बच गया? 2 इज इक्वल टू व्हाट? 0. So this implies that this is obviously not equal to 0. Either x1 minus x2 equal to 0 or the next combination is equal to 0. Product of three things is equal to 0. First is not equal to 0. It means at least one of these two have to be equal to 0. ठीक है जी. तो प्रिय दोस्तों, this will give you what? x1 equals to x2, and this is also not possible. So you get only one condition. Why it is not possible? Please just ponder over it. सोच लिया? क्योंकि x1 x2 belongs to the domain set, right boss? x1 x2 किसको बिलोंग करते हैं? r पॉजिटिव को. तो दोनों का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? और मैं मिनिमम भी लेके चलूँ तो 0, यहाँ भी 0 डाल दो, यहाँ भी 0 डाल दो, क्या बन गया? 0 प्लस 2, तब भी 0 नहीं होगा, ठीक है ना? सो 3 into x1 plus x2 plus 2 can never be equal to 0. So here it will for all x1 x2 belonging to domain. So this implies f is 1 1. It gave us only one conclusion, and the conclusion was x1 is equal to x2. ठीक है. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, आई एम अगेन रिपीटिंग इट, इम्पॉर्टेंट स्टेप है इसका सिंप्लीफिकेशन, और उसका बेसिक रूल यही है, व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इफ देयर इज अ टर्म, ठीक है, दैट इज देयर इन एट मोर देन वन प्लेसेस, प्लीज पुट ऑल द लाइक टर्म्स टुगेदर, राइट, एंड देन यू फर्दर सॉल्व देम. सारी सेम डिग्रीज को इकट्ठे कर लो, सोल्यूशन कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी आ जाएगा. एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑनटूनेस. हाउ टू प्रूव द ऑनटूनेस ऑफ दिस वन? ठीक है सर. सो व्हेन यू हैव टू प्रूव इट एज ऑनटू, सो लेट फॉर y belonging to codomain of the function there exist some x belonging to the domain of the function such that f of x is equal to y. This will give you what? 9x square plus 6x minus 5 is equal to y. This will give you 9x square plus 6x minus 5 minus y equal to 0. So as we already know कि onto का procedure क्या है? Solve for x in terms of what? Y. So when you solve it for x, so this is actually a quadratic equation in x, and when you take it quadratic equation in x, this whole stuff will turn into constant. ठीक है. So this is a, this is b, and this entire thing will be c, and the roots का formula basic अगर splitting भूल गया है, x is equal to minus b plus minus under root of discriminant b square minus 4ac upon twice of a. ठीक है. So this will give me x is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4 into a into c minus 5 minus y upon twice of a. This is further equal to minus 6 plus minus, this is 36 minus, this minus taken out, minus and minus will make it what? Plus. 9 4s are 36. In the bracket you will have both these positive as minus is taken out and multiplied with minus 4 upon 18. ठीक है सर. अब इस क्वेश्चन का सबसे जो इंटरेस्टिंग वाला पार्ट हमारे पास रहेगा, so that will be x is equal to प्लस माइनस, यहाँ से मैं 36 कॉमन ले सकता हूँ, रूट के बाहर जाके वो क्या हो जाएगा? 6 इंटू अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे क्या बच गया? 1 प्लस यहाँ भी 1 इंटू दिस थिंग 5 प्लस वाई अपॉन 18. दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 6, और यू 6 एलिमिनेट ही कर लो अभी, क्यों? वाई टू प्रोलॉन्ग इट. सो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ y प्लस 6 अपॉन 3. ठीक है. 6 कॉमन आ जाएगा, 6 3 इज द 18. इसको मैं क्या लिखता हूँ? एक आंसर आएगा माइनस वाला और एक आएगा प्लस वाला. माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ y प्लस 6 अपॉन 3.
सो माइनस वाला रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमारे पास जो x बिलोंग कर रहा था r पॉजिटिव को, तो ये तो x हो ही नहीं सकता, सो दिस इज रिजेक्टेड। और y किसको बिलोंग कर रहा था, -5 से इन्फिनिटी को। सो इसका मतलब x इज इक्वल टू, मैं रूट पहले लिख लेता हूँ, है ना, -a + b कैन बी रिटन एज b - a -1/3, and this belongs to R positive for all y belonging to -5 to infinity। एक तो उसने लिखा था कि इसका इन्वर्स निकालो, ये होता है, इन्वर्स तो होता ही तब है जब वो बाइजेक्टिव हो, और बाइजेक्टिव होने के लिए उसको ऑन टू होना पड़ेगा, और ऑन टू होने के लिए फिर यहाँ चेक करने का सवाल पैदा नहीं होता। बट स्टिल अगर आप इसको चेक करना चाहते हो, y का मिनिमम वैल्यू -5 यहाँ पुट करो, क्या बनता है, -5 + 6 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1 1 - 1/3 बना हमारे पास, 1 - 1 0 बना ना, 0/3 0, तो 0 इज देयर इन द डोमेन सेट, x से आना था ना, मिनिमम वैल्यू तो 0 तो है उसके पास, ठीक है। दिस इज हाउ कैन यू प्रूव दैट दिस इज एन ऑन टू फंक्शन, एक तरीका। दूसरा तरीका यहाँ पे क्या होता है, कुछ लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक मेथड के बजाय कॉम्प्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड भी लगाते हैं, ठीक है जी, completion of square method. So choice is yours. I hope everybody knows what the completion of square method is. You make the coefficient of degree to unity, then you add and subtract the square of half of the coefficient of linear, that is what linear will be x here, ठीक है। that is another way of doing it. Choice is yours. quadratic बड़ा ट्रेडिशनल सा वे है, जो आपको ठीक लगता है आप कर सकते हो। अब इसके बाद क्या होगा, ये हमारे पास आ गया, अब हमने फाइंड करना था एफ इनवर्स, तो बाइजेक्टिव हो गया फंक्शन हमारे पास। जैसे ही ये फंक्शन हमारे पास बाइजेक्टिव हो गया इसका, so this implies that f is bijective, and if f is bijective, so f of x equal to y implies that x is equal to f inverse of y. So this implies that f inverse of y is equal to √y + 6 - 1/3। सो क्वाड्रेटिक में वैल्यूज बदलती जाती हैं, बट क्वाड्रेटिक फंक्शन पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है 1 1 और ऑन 2 में। सो दिस इज हाउ डू यू गेट द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। यू वांट टू वेरीफाई, यू कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ एफ कंपोजिशन एफ इनवर्स और एफ इनवर्स कंपोजिशन एफ टू फाइंड द इनवर्स। सो अभी 2-3 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए इसी ट्रेंड पे, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन दे रखा है, हम उसका इनवर्स निकाल रहे हैं। अब थोड़ा एक ट्रिकी क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट मैथ्स। एक छोटा सा क्वेश्चन है ना, बहुत ज़्यादा मीठा खाने से भी बीमार होने की संभावना हो जाती है। सो बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, दिस इज एक्चुअली अ रिजल्ट की यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज यूनिक, कि इनवर्स एक ही होगा, एक से ज़्यादा इनवर्स नहीं हो सकते। वो कहता है कि अगर f is a function from x to y, this is a question in textbook only, right? f is a function from x to y and this is invertible, right? Then prove that f inverse is unique, means it has only one inverse. सॉल्यूशन, आपको पता है जब भी वो किसी चीज की यूनिकनेस के लिए क्वेश्चन पूछता है तो हम उल्टा मान के चलते हैं कि वो यूनिक नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, वी कंसिडर एफ इनवर्स इज नॉट यूनिक, दैट इज लेट g1 एंड g2, ठीक है। अब g1 भी फंक्शन है और g2 भी क्या है, फंक्शन है, तो प्रॉपर डिफाइन करके लेता हूं मैं इनको। लेट g1 फ्रॉम y टू x, चेंज हो जाता है ना डोमेन, और कोडोमेन इंटरचेंज हो जाते हैं, एंड g2 राइट बी द इनवर्सेस ऑफ f। अच्छा, अब अगर ये दोनों उसके f के क्या है इनवर्स हैं, तो उसके डोमेन में हम x लिखना चाहते हैं x लिख लो, y लिखना चाहते हो y लिख दो। जनरली ये सेट आपको y दिया गया है तो y में लोग y लेते हैं, आर्बिट्ररी एलिमेंट लेना आपकी चॉइस है। अब जब कोई चीज़ इनवर्स होती है, क्या होती है, कोई चीज़
इनवर्स होती है तो उसमें हमारे पास सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है, कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन एंड इट्स इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन. सो G1 composition of f, ठीक है, is must be equal to G2 composition with f. That is what you say is G1 composition f on some element, let me say y, is equal to G2 composition of f on some element y ले लो, ठीक है, सेम एलिमेंट पे ऑपरेट करोगे. So f of G1 of y will be equal to f of G2 of y. अब f क्या है हमारे पास, what is f? f is 1 1. So अगर f 1 1 है तो इसका मतलब f of x1 equal to f of x2 is equal, implies that x1 equal to x2. अब बहुत से दोस्त ये पूछ रहे होंगे यार f11 गिवन तो है नहीं, बट क्या गिवन है, इन्वर्टिबल. अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है तो बाय डिफॉल्ट ये फंक्शन क्या है हमारे पास, एग्जैक्टली बाइजेक्टिव है. अगर ये बाइजेक्टिव है तो इट हैज टू बी 1 1. तो f of x1 is equal to f of x2 imply x1 is equal to x2, है ना. और जब हमारे पास f of x equal to f of y for all, sorry, f of x equal to g of x हो जाए for all x, so this is the definition of what? This is the definition of what? Equality of functions. So it means that g1 is actually equal to g2. तो जो हमने अलग अलग निकले थे वो तो दोनों एक ही हो गए. It means that inverse is unique. Our supposition is wrong and inverse is unique. हाँ, ये क्वेश्चन हो सकता है for all क्यों आया, क्योंकि सर अगर वो उसका इनवर्स होगा तो composition of function for all the elements of the domain will be equal to identity. That is why I wrote for all y. Please remember this. This is very, very important question. A good conceptual question, has not been there in exams so many number of times. Such questions are expected. Right? Now we come to the next one. Another interesting question from the exercise. There is a miscellaneous exercise of the chapter. This is a question where actually we have to use the contrapositive definition of 1 1. Right, sir? So the function is w to w. W is what you say, set of whole numbers. Sometimes you also write it like this, that is a function from natural union singleton 0 to natural union singleton 0. So don't confuse yourself with this. Right? And is defined as f of n is equal to n minus 1 if n is odd and n plus 1 if n is even. Right? So this is actually the definition of the function defined from w to w. Right, boss? He's asking us prove that f is equal to f inverse. Question ऐसा नहीं है, वैसे क्वेश्चन में वो कहता है show that f is invertible and find f inverse. बट इसमें एक इंटरेस्टिंग सी चीज बात होगी कि एक फंक्शन खुद का इनवर्स होगा. आपने वर्ड सुना होगा इन्वोल्यूटरी, है ना. तो जैसे ए स्क्वेयर इक्वल टू अगर 1 आ जाए, राइट, 1 into 1 is equal to 1 था ये. सो जब आपके पास खुद ही खुद का इन्वर्स हो तो इसको कहते हैं इन्वोल्यूटरी फंक्शन में भी आ जाएगा एक कॉन्सेप्ट. एक नई चीज भी सुनने को मिल गई हमें, इन्वोल्यूटरी फंक्शन विच इज इट्स ओन इनवर्स. आइडेंटिटी सबसे बेस्ट एग्जांपल रहती है उसकी. सो व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू प्रूव 1 1. Now dear friends, this is a conditional function. So for conditional functions I have to take all the possible conditions. So there will be total 4 conditions. क्योंकि मैं क्या करता हूँ, डोमेन में 2 एलिमेंट लेता हूँ, या तो वो दोनों इवन हो सकते हैं. असल में नंबर्स क्या हो सकते हैं, इवन या ऑड, है ना. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग
परमुटेशन कॉम्बिनेशन का नाम लेंगे तो मन खराब हो जाएगा। अब मेरे पास दोनों, जहाँ तो वो दोनों नंबर जो x1 x2 में लेता हूँ, यहाँ पर उसने एंड लिखा है तो मैं n1 n2 ले लूंगा। जैसे n1 n2 या तो दोनों इवन होंगे या एक इवन और एक ऑड होगा, या क्या होगा पहला वाला ऑड और दूसरा इवन होगा, या पहला वाला भी ऑड और दूसरा वाला भी ऑड। तो टोटल कितने केसेस बनेंगे? 4 केसेस। सो फॉर oneness आई हैव टू गो थ्रू ऑल द 4 केसेस। हालांकि दो केस एक जैसे रहेंगे बट मुझे लेने पड़ेंगे, तो कैसे कंसिडर करूंगा मैं? केस नंबर 1, लेट n1 n2 belongs to W even। पहले जब मैंने दोनों इवन ले लिए, such that f of n1 is equal to f of n2, that implies that n1 plus 1 equals to n2 plus 1, n1 is equal to n2 for all n1 n2 belongs to even। तो पहले केस में 1 टेस्ट पास हो गया, पहला पास हो गया तो दूसरा टेस्ट देना पड़ेगा। दूसरा केस क्या आ जाएगा हमारे पास? राइट, केस नंबर 2 विल बी n1 n2 belongs to W odd, ठीक है, such that f of n1 is equal to f of n2। इसका मतलब क्या होगा? n1 minus 1 equals to n2 minus 1, again n1 equals to n2 for all n1 n2 belonging to what? odd whole numbers। इसका मतलब क्या हो गया? f is 1 1, ठीक है। अब मेरे पास थर्ड केस आता है, ये थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनेंगे सब लोग। n1 belongs to odd and n2 belongs to even। अब यहां पे इंटरेस्टिंग इनपुट आ गया, एक पहला नंबर ऑड है दूसरा इवन है, तो ये इक्वालिटी वाला प्रोसीजर मैं यूज नहीं कर सकता क्योंकि ऑड कभी भी इवन के बराबर नहीं होता। तो मुझे शुरू से ही पता है सच दैट अब अगर ये इवन है और एक ऑड है तो इसका मतलब n1 is not equal to n2। So dear friends, here I have to apply the concept। If you remember, दूसरा definition था x1 not equal to x2 implies f of x1 not equal to f of x2। Please, if you can go through that topic जहाँ पे आपको मैंने 1 पढ़ाया था, वहाँ पे बताया था मैंने 1 प्रूव करने के 2 तरीके हैं। तरीका नंबर 1 है f of x1 equal to f of x2 implies x1 equal to x2, ठीक है। दूसरा है कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट, x1 is not equal to x2 implies f of x1 not equal to f of x2। बट गलत बच्चे लगा देते हैं, कभी कभी इसको पहले लिखते हैं और इसको बाद में लिखते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, एंड दिस इज एक्चुअली दिस टॉपिक बी यूज इन वेरी रेयर प्रॉब्लम्स टू सॉल्व। तो आप ये सोच सकते हैं इसका वेटेज थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है ना। जिसका लिमिटेड एडिशन होता है उसका मार्केट में प्राइस बहुत बढ़िया रहता है। सो n1 is not equal to n2। तो मुझे क्या प्रूव करना है? f of n1 is not equal to f of n2। ध्यान दीजिएगा, n1 क्या था? ऑड के लिए क्या चाहिए मुझे? n1 minus 1। और n2 क्या था? इवन के लिए क्या चाहिए मुझे? n2 plus 1। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अगर ये चीज आएगी तभी उनके फंक्शन पे पहुंच पाऊंगा। तो इसका मतलब n1 minus 1 is not equal to n2 plus 1। अब आप कह सकते हैं कि ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे उनके फंक्शंस की डेफिनेशन बनानी थी और फंक्शंस की यही डेफिनेशन है। और अब आप कह सकते हो कि हमें क्या पता ऐसा होगा। n1 कौन है? ऑड में से एक माइनस कर दोगे क्या हो जाएगा? इवन। n2 क्या है? इवन में एक प्लस कर दोगे क्या हो जाएगा? ऑड। अगर ऑड इवन के बराबर नहीं है तो इवन भी ऑड के बराबर नहीं है। तो f of n1 is not equal to f of n2 for all n1 belonging to W odd and n2 belonging to W even। Right, boss? So now case number 4. Case 4 is what? Fourth case. Case 4. When n1 belongs to even and n2 belongs to odd. Right? Again we know that n1 is not equal to n2 because an even number cannot be equal to an odd number। So मुझे प्रूव क्या करना है यहाँ पे भी? अगेन सेम चीज वही प्रूव करनी है that f of n1 is not equal to f of n2। लेकिन इस बार n1 कहाँ से है? देखिए n1 इवन से है, इवन वाली डेफिनेशन लगेगी। तो क्या मुझे प्रूव करना है यहाँ पे? साइड में मैं पहले लिख लूंगा। मुझे प्रूव करना है f of n1 not equal to f of n2, राइट। और f of n1 का मतलब होगा n1 plus 1 और इसका मतलब होगा n2 minus 1। जो चाहिए होता है उसको साइड पे सिंप्लीफाई कर लेना चुपचाप पेंसिल के साथ।
आइडिया बन जाता है। अब दिखाओ क्या ये है भी ऐसा या नहीं है। n1 कौन है, इवन, तो n1 + 1 क्या हो जाएगा, ऑड, इज नॉट इक्वल टू n2 क्या है, ऑड, n2 - 1 क्या हो जाएगा, इवन। बिल्कुल सही है। अगर ये इवन है +1 करोगे तो ऑड हो जाएगा, ये ऑड है -1 करोगे तो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। इसका मतलब f of n1 इज नॉट इक्वल टू f of n2. What does it mean? That this function is, in this case the function is also, here you will write for all n1 belonging to even and n2 belonging to odd. It means that f is 1 1 for all cases, so f is actually 1 1. Now we have to prove that the given function is an onto function, right? So onto कैसे प्रूव करते हैं, सेम कंडीशन लगेगी हमारे पास onto के लिए भी. So for onto, let y belongs to, this is codomain, ठीक है. So there exists some x belongs to domain such that f of, sorry n लिख रहा हूं तो n ही लिखूंगा, such that f of n equals to y. This implies that n minus 1, or I must write y, I'll take y on the left hand side, fine, is equal to n minus 1 if n is odd and n plus 1 if n is even. अभी तक हम इस क्वेश्चन को x में कर रहे थे तो हम x की वैल्यू निकालते थे. इस क्वेश्चन में x की जगह हमारे पास क्या आ गया, n, तो वैल्यू किसकी निकलेगी, n की. मीन्स वी हैव टू फाइंड n नाउ. वेरी सिंपल, टेक देम सेपरेटली. y is equal to n minus 1, n is odd. Friends, if n is odd, so n minus 1 is what? If n is odd, so n minus 1 is what? Even. And y is equal to what? N minus 1. It means that y is what? Even. Isn't it? So वहां पे मैं क्या करता था, x की वैल्यू निकालता होता था onto में. यहाँ x की जगह पर क्या है, n. तो n is equal to y plus 1 in terms of y ना, तो y is what? Even. So this implies n is equal to y plus 1 if y is even. Right? और दूसरा वाला केस क्या बनेगा, अगेन सेम, y is equal to क्या लूंगा मैं, n plus 1. तो इसका मतलब n क्या हो जाएगा मेरे पास, y minus 1. अब कंडीशन y की टाइम में लिखनी है. इधर देखो n क्या था, what was n? n was even. तो n plus 1 क्या हो जाएगा, odd. और n plus 1 कौन है, y. This is the case when y is odd. So this means this is y minus 1 if y is odd. Right? और इसके बाद क्या लिखते होते हम लोग, which implies that n belongs to w for all y belonging to w. Hence f is onto. Please verify. अगर आप इसको करना चाहते हैं तो ये वाली चीज में अगर आपको थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है या थोड़ा सा डाउट हो रहा है, so I can draw the arrow diagram also for you. I hope this is done. So if I draw the arrow diagram, it goes like this. कहाँ से कहाँ तक था, होल नंबर से था ना, होल नंबर टू होल